Students, let's continue with the chapter The Last Lesson. Till now, we have studied that Franz, he was going to school, but on that day, he did not want to go to school because he had not studied the participles. His teacher, MML, had asked him to study them. On the way, he saw the bulletin board, there was a crowd, and all the bad news had come from that bulletin board. For a moment he surprised what could be the news now, but he went on to school. When he went to school on that particular day, the things were different. There was no noise as usual, and the teacher was already in the class. Anyhow, he reached the class. He got late. He thought Mr. MML would get angry, but for his surprise, that day MML talked very gently with him and asked him to enter into the class. Now let's see what happens in the class. I read the chapter, continue. While I was wondering about it all, MML mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me said, "My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the school of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive." What a thunderclap these words to me! When MML started, he announced with his gentle grave tone. Why grave and gentle tone? Because something was very shocking in that tone. Very gently said, "My children, this is my last lesson I shall give you." Why? Because the order has come from Berlin to teach German only in the schools. जर्मन और फ्रांस दोनों का वर्ल्ड वॉर चल रहा था. वर्ल्ड वॉर में दोनों कंट्रीज़ थी और जर्मन ने फ्रांस को डिफीट कर दिया था. अब ऑर्डर आए थे जर्मनी से कि अल्सेक लॉरेंस में जर्मन पढ़ाया जाएगा, फ्रेंच की क्लास नहीं होगी. इसलिए MML ने कहा कि ये मेरा लास्ट लेसन है, कल से अब तुम्हें नए टीचर आएंगे और वो तुम्हें जर्मन पढ़ाएंगे. इतना सुनते ही फ्रेंच घबरा गया. देवर थंडरक्लैप दीज वर्ड्स टू मी. थंडरक्लैप मीन्स जैसे इसके सिर पर बिजली गिर गई हो. ऑन द रैचेस दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप द टाउन हॉल. उसे समझ में आ गया कि अच्छा, टाउन हॉल पर यही वो मैसेज था जिसके लिए वहाँ भीड़ लगी हुई थी और इसे ब्लैक स्मिथ ने कहा था कि तुम्हें जल्दी नहीं है स्कूल जाने की, अब तो बहुत समय है तुम्हारे पास. कंटिन्यू. माई लास्ट फ्रेंच लेसन. Why, I hardly knew how to write. I should never learn any more. I must stop there then. Oh, how sorry I was for not learning as many lessons, for seeking birds, eggs, or going sliding on the Saar. My books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the sense, were old friends now that I couldn't give up. And MML too. The idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. जैसे ही से ये पता चला कि अब MML पढ़ाने वाले नहीं है, आगे फ्रेंच क्लासेस नहीं होंगे, उसे अपने आप पर सॉरी फील हुआ. उसे फील हुआ कि क्यों उसने अभी तक ठीक से पढ़ाई नहीं की. वो फ्रेंच मैन होकर के भी अब अपनी ही लैंग्वेज को न लिख सकता है न पढ़ सकता है. ही वॉज वेरी सॉरी फॉर दैट. देन ही सेड ही फेल्ट, जो बुक्स उसके पास थी, जो बुक्स अभी थोड़ी देर पहले उसे हैवी लग रही थी, बर्डन लग रही थी, ख़राब लग रही थी, वो सारी बुक्स अचानक से उसे बहुत अच्छी लगने लगी, उसे डियर लगने लगी क्योंकि वो उनसे बिछुड़ने वाला था. उसे फील हुआ कि क्यों वो इधर उधर अपना समय वेस्ट करता था, जब पढ़ाई का समय था उसने पढ़ाई क्यों नहीं किया, ये उसने पूरा फील किया. देन अपने टीचर के लिए भी बहुत सोचता है कि जो टीचर MML उसे कुछ समय पहले तक क्रैंकी नज़र आते थे, लेकिन अब वो टीचर से बहुत अच्छा लग रहा था. ये टीचर, इन्होंने मुझे इतने अच्छे से पढ़ाने की कोशिश की और अब ये मुझे छोड़ कर जा रहे हैं. देन व्हाट ही सेज, MML टू, द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे,
that I should never see him again made me forget all about his ruler and how cranky he was. सब भूल गया कि वो cranky है, सब कुछ है, लेकिन जो कुछ भी थे वो उसके भलाई के लिए थे. Poor man! It was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, and now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room. It was because they were sorry, too, that they had not gone to school more. It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more. While I was thinking of all this, I heard my name called. पढ़ते हुए पुअर मैन, इट वॉज इन हिज ऑनर. ये शायद इसी बेचारे टीचर के लिए, इनके ऑनर के लिए, इन्हें थैंक्स कहने के लिए, इसीलिए शायद गांव के सभी लोग, बुज़ुर्ग लोग, रिटायर्ड पोस्ट मास्टर वगैरह सभी लोग क्लास में आकर इसीलिए शायद बैठे हैं क्योंकि वे खुद भी, वे सभी लोग सॉरी फील कर रहे थे कि उन्होंने MML के क्लासेस क्यों और अटेंड नहीं की, क्यों और स्कूल नहीं गए. और ये शायद यही उनका तरीका था सॉरी फील करने का और MML को 40 इयर्स की टीचिंग का रिस्पेक्ट देने के लिए थैंक्स कहने का, यही एक उनका तरीका था. और ये सब इसीलिए बैठे हुए थे, इतना सोच रहा था, तब इसका नेम कॉल हुआ. अब उसे अपने आंसर देने थे. इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट. What would I not have given to be able to say that dreadful rule of the participles all through, very loud and clear and without one mistake? But I got mixed up on the first words and stood there, holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up. जब उसका नाम कॉल हुआ, उसे पार्टिसिपल्स बताने थे. बेगर रुक के शुरू से आखिरी तक पूरे पार्टिसिपल्स के बारे में बताना था. अब पार्टिसिपल्स वो कुछ बता ही नहीं पाया. जब नहीं बता पाया, घबरा गया, उसका हार्ट बीट होने लगा और फील किया, उसे सॉरी फील हुआ कि उसने सब कुछ पढ़ाई नहीं की. माय डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक यू नो अबाउट पार्टिसिपल्स. दे आर द वर्ब फॉर्म्स. प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल. क्लास 10th में आपने फाइनाइट, नॉन फाइनाइट वर्ब्स पढ़े होंगे, राइट? सो फिर एक बार हम किस दिन फाइनाइट, नॉन फाइनाइट की स्टडी करेंगे. देन विल स्टडी अबाउट पार्टिसिपल सेपरेटली. सो सब पार्टिसिपल्स फ्रेंड्स को पढ़ने थे, बताने थे, पर वो कुछ भी नहीं बता पाया. घबरा गया, हार्ट बीट होने लगा, डर गया. बट MML ने उसे नाराज़ नहीं हुए, डांटा नहीं. क्या बोले? I heard MML say to me, I won't scold you, little friends. You must feel bad enough. See how it is. Every day we have said to ourselves, bah, I have plenty of time. I'll learn it tomorrow. And how? And now you see where we have come out. And that's the great trouble with Alsek. She puts off learning till tomorrow. Now those fellows out there will have the right to say to you, how is it? You pretend to be Frenchman, and yet you can neither speak nor write your own language? But you are not the worst, poor little friends. We have all a great deal to reproach ourselves with. MML ने जब फ्रेंड्स आंसर नहीं दे पाया, पार्टिसिपल्स के बारे में नहीं बता पाया, तो MML ने बड़े प्यार से समझाया. उन्हें कहा, आई वोंट स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें डांटने नहीं वाला हूँ फ्रेंड्स. अब तुम्हें खुद को फील करना है कि तुम कहाँ हो, तुमने अपना कितना नुकसान कर लिया है. और ये हम लोगों की सभी की प्रॉब्लम है, स्पेशली स्टूडेंट्स, तुम लोगों की प्रॉब्लम है कि तुम सोचते अभी हमारे पास समय है, हम फिर कभी पढ़ लेंगे. आप कहते हैं, वाह, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, बहुत समय, मैं कभी भी लर्न कर लूँगा. लेकिन देखो अचानक से क्या हो गया. एंड दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद आल्सेक. शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो. शी हियर, हम जब अपनी कंट्री को एज मदर शो करते हैं इमोशंस के साथ में, तो हम नेशन के लिए शी वर्ड यूज़ करते हैं, नॉट इट. जिससे कई लोग बोलते हैं इट इज़ माई कंट्री, बट यू कैन से शी इज़ माई कंट्री एज मदर नेशन. सो ही सेज शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो. नाउ दोज फेलोज, जो भी बाहर जो लोग हैं जो तुम्हें मिलेंगे, वो तुमसे पूछ सकते हैं कि तुम तो फ्रेंचमैन हो, लेकिन तुम खुद अपनी लैंग्वेज नहीं बोल सकते. ये उनको पूछने का हक हो सकता है, लेकिन अब तुम्हें फील करना होगा कि क्यों तुमने इतना लर्निंग नहीं किया और अब फ्रेंचमैन होकर तुम्हें फ्रेंच लैंग्वेज क्यों नहीं आती है. बोले फिर भी तुम सबसे वर्स्ट नहीं हो. वी
वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्स विद। फ्रेंड, एम कहना चाहते हैं कि एज अ स्टूडेंट तुमने स्टडी नहीं किया, तुम्हारी गलती है, लेकिन एक स्टूडेंट की लर्निंग नहीं करने के पीछे स्टूडेंट के साथ में उसके पेरेंट्स और उसके टीचर भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो आगे वो आगे कहते हैं, योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ टू हैव यू लर्न, दे प्रिफर टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फॉर्म और एट द मील्स so as to have a little more money. And I have been to blame also. Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons? And when I wanted to go fishing, did I not just give you a holiday? मतलब सभी रिस्पॉन्सिबल, जैसे तुम्हारे पेरेंट्स, वो भी तुम्हारी पढ़ाई में इतने इंटरेस्टेड नहीं थे, वो इतने एंशियस इनफ नहीं थे कि तुम्हें पढ़ाई जाए, तुम्हें लर्निंग के लिए फोर्स करें। वो सोचते थे पैसे कमाए जाए और तुम्हें फॉर्म पर भेजते थे, काम पर भेजते थे, मील भेजते थे, और पैसे कमाना उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। कभी मैंने भी तो तुम्हारे साथ ऐसा किया है। जब कभी मुझे पढ़ाना नहीं होता था, जब मैं नहीं चाहता था, मैंने तुम्हें अपने लेसन्स नहीं देना चाहता तो मैं तुम्हें गार्डन भेज देता था, अपने फ्लावर्स को वाटर करने के लिए भेजता था। इस तरह से मैंने भी अपना काम नहीं किया। दे आर द थिंग्स MML wants to show. These 3 points: student, parents and teacher. These 3 should be responsible, and if a child learns these 3, they are responsible, that they make the child learn. Then he goes ahead. Then from one thing to another, MML went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical, that we must guard it among us and never forget it. Because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. Then he opened the grammar and read us our lesson. इस पैराग्राफ में बहुत से ग्रामर वर्क बताता हूँ। पहले हमें देखें, एक लेसन से दूसरे लेसन होते हुए फ्रेंच के बारे में MML ने कहा। बोले फ्रेंच लैंग्वेज सबसे अच्छी लैंग्वेज है, दुनिया की सबसे अच्छी लैंग्वेज में से है, क्लियरेस्ट है, लॉजिकल है, हम सभी को इसे गार्ड करना चाहिए, हमें अपनी लैंग्वेज को बचाना चाहिए। लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस इस लेसन में दिया है। देन सबसे इंपॉर्टेंट जो ग्रामर वर्क आप देखें, यहाँ पर ध्यान से देखें तो इस लाइन को आप देखें, व्हेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड, यहाँ पीपल प्लूरल है, आर इसके आगे यूज़ किया है, लेकिन इसके पहले अ पीपल यूज़ किया गया है। इट्स वेरी स्पेशल यूज़ ऑफ ग्रामर। अ पीपल कैसे कहा जा सकता है, अ पीपल आर कैसे कह सकते हैं? बिकॉज जब हम किसी देश के लोगों की बात करते हैं, व्हेन here he wants to say when people of a country are enslaved, तो बजाय ये कहने के कि people of a country are enslaved, उन्होंने डायरेक्ट के इस तरह से यूज़ किया है when a people are enslaved। तो जब कभी किसी देश के लोगों को एनस्लेव किया जाता है, तो जब तक उनके साथ उनकी लैंग्वेज होती है, उनकी लैंग्वेज के पावर से वो आज़ाद हो सकते हैं। दे हैव द की टू देयर प्रिजन, वो अपनी आज़ाद हो सकते हैं। फिर ग्रामर के एक लेसन से दूसरे लेसन पर चलते गए। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। ऑल ही सेड सीम्ड टू इज so easy I think too, that I had never listened so carefully, and that he had never uh, explained everything with so much patience. It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away, and to put it all into our heads at one stroke. After the grammar, we had a lesson in writing. That day, MML had new copies for us, written in a beautiful round hands. Franz Alsek. I was amazed to see how well I understood it. Naturally, जब स्टूडेंट लर्निंग के लिए रेडी होता है तो सभी चीज़ें बहुत इजी हो जाती हैं। वो अमेज्ड हो गया कि आज लर्निंग इतनी इजी कैसे, आज मुझे सब कुछ समझ में क्यों आ रहा है, क्योंकि वो खुद उस दिन पढ़ने के मूड में बैठ गया था, उसे समझ में आ गया था। जिसके लास्ट क्लासेस ने अपना पूरा अटेंशन क्लास में दिया, तो खुद अमेज्ड हो गया कि हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। ऑल इज सेड टू सेम सो ईजी, जो कुछ भी पढ़ा रहा है कितना ईजी है, कितना आसानी से समझ में आ रहा है। आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, उसने रियलाइज़ किया, उसने अपने आप को फील किया कि यस, आज
मैं बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ. आई हैव नेवर लिसन सो केयरफुली. मैंने इतने केयरफुली पहले कभी सुना ही नहीं. तो नेचुरली पहले कभी सुना ही नहीं, तो उससे लेसन कभी इतने ईजी लगे नहीं. और दूसरा, आज टीचर भी बड़े पैशन के साथ समझा रहे थे, बहुत धीरे धीरे सब चीज़ें समझा रहे थे. तो टीचिंग एंड लर्निंग बोथ बिकेम वेरी ईजी एंड ही अंडरस्टूड एवरीथिंग. This way, ML had copies for us in return. Beautiful round hands, Franz Alsek.